Dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Aminullah Sheikh. This is our lecture 3 of our course Islamic Banking and Finance. We will continue this lecture from where we discontinued our lecture 2. In lecture 2, we started a new topic, riba, which is also known as interest. In lecture 2, we discussed the first type of riba, riba al-nasiya. And in this lecture, we will be discussing the second type of riba, which is known as riba al-fazl. All right, let's discuss the concept of riba al-fazl. Here comes the definition of riba al-fazl. Riba al-fazl is any excess taken in exchange of specific commodities which are homogeneous. रिबा अल फजल किसे कहते हैं? एनी एक्सेस टेकन किसी भी किस्म का इजाफा लेना इन एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ जबकि स्पेसिफिक कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा हो विच आर होमोजीनियस जो कि होमोजीनियस हैं. इट मीन्स रिबा अल फजल कहते हैं ऐसी दो चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है जो कि स्पेसिफिक कमोडिटीज़ में से हैं और वो होमोजीनियस भी हैं. अगर उसमें किसी भी किस्म का इजाफा लिया जाएगा तो वो इजाफा क्या होगा? रिबा अल फजल होगा. So in this definition, we have to discuss what do we mean by specific commodities and what do we mean by homogeneous. But before we going to discuss these topics, let's discuss the example of riba al-fazl. 10 kg of wheat against 15 kg of wheat. Let me inform you, riba al-fazl is always found in a barter system. You know the barter system where one commodity is exchanged with another commodity. So here wheat is exchanged against wheat. From one side you are giving 10 kg of wheat and from another side you are getting 15 kg of wheat. So 5 kg is excess, which is riba al-fazl and impermissible. Similarly, 5 grams of gold against 6 grams. 5 grams of gold against 6 grams. Gold and gold is exchanged. This is a barter transaction, but with inequality. From one side, you are giving 5 grams. From another side, you are getting 6 grams. 1 gram is in excess, which is riba al-fazl and again impermissible. All right, these are the examples of riba al-fazl. Now coming back to the concept of riba al-fazl, any excess taken in exchange of specific commodities. What do we mean by specific commodities? Let's discuss this first. For to understand that, we have to refer a hadith from Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is coming in the next slide. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whenever you are, in fact, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has listed 6 kinds of commodities in this hadith. 6 kinds of commodities. Let's count one by one. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when you exchange gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, and salt for salt. See, these are 6 commodities. Gold against gold, 1. Silver against silver, 2. Wheat against wheat, 3. Barley against barley, 4. Dates against dates, 5. And salt against salt. These are 6 commodities and all are exchange homogeneous, right? Homogeneous means which are of same form. These are not heterogeneous. Gold and gold are homogeneous. Silver and silver are homogeneous. Wheat and wheat are homogeneous, and so on. So you know homogeneous means things which are of same form. So whenever a homogeneous exchange takes place between these commodities, the Holy Prophet ﷺ has asked 2 requirements. Number 1, equal for equal. There should be an equality. There should be an equality in terms of weight. Equality in terms of weight. If I am giving you 5 grams of gold, then I can only get 5 grams of gold. Not more than that, not less than that. If I am getting more than that, I am getting interest. If I am getting less than that, you are getting interest. In either case, there is an interest. Therefore, there should be an equality between exchange of gold and gold. Similarly, silver for silver. If I am giving 10 grams of silver, so I am entitled to get 10 grams of silver as well. So if I am getting more, this is interest. If I am getting less, you are getting interest. Similarly, weight for wheat.
wheat for wheat. If I'm giving you 10 kg of wheat, so you have to give me 10 kg of wheat as well. So the same is in another commodities. So there should be an equality in terms of weight. जितना वजन मैं आपको दे रहा हूँ उतना ही वजन मैं आपसे ले सकता हूँ. And hand to hand means spot delivery. The second requirement is spot delivery. Spot delivery means I am giving you now and you have to give me now as well. मैं आपको अभी दे रहा हूँ, आपको भी मुझे अभी देना होगा. आपको मैं अभी दे रहा हूं तो आपको भी मुझे अभी देना होगा. अगर मैं आपको अभी दे रहा हूं और आप मुझे एक हफ्ते के बाद देंगे, अगेन दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज एन एक्सेस. मैं आप मेरे गुड्स से अभी फायदा उठाएंगे और मुझे आपकी गुड्स से फायदा उठाने का मौका एक हफ्ते के बाद मिलेगा. सो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सेस इन योर साइड, सो विच इज आल्सो इम्परमिसिबल एंड कंसीडर्ड एज रिबा अल फजल. तो मैं अगर आपको गोल्ड अभी दे रहा हूं तो आप भी जो है ना मुझे गोल्ड अभी ही देंगे और उतना ही देंगे जितना मैंने दिया है. A question can comes into your mind, अगर मैं भी आपको गोल्ड अभी दे रहा हूँ, आप भी मुझे अभी गोल्ड दे रहे हैं और वेट भी दोनों का सेम है, then why should we do this exchange? So the answer to that question is, मैं आपको गोल्ड फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी फॉर्म में दे रहा हूँ और आप मुझे गोल्ड फॉर एग्जांपल बिस्किट फॉर्म में दे रहा हूँ. सो आई नीड बिस्किट, सो आई एम आस्किंग यू अ बिस्किट, आई एम आस्किंग यू फॉर अ बिस्किट, और एंड यू नीड ज्वेलरी, तो उसके बदले मैं आपको ज्वेलरी दे रहा हूँ. तो देखें गोल्ड का गोल्ड से एक्सचेंज हो रहा है, गोल्ड का बिस्किट एंड गोल्ड की ज्वेलरी. सो देयर शुड बी एन इक्वालिटी in terms of weight and in terms of time of delivery. The time of delivery for both the counterparties, both the counter assets should be the same. All right. So these are the two requirements which Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has given. If homogeneous exchange is taking place, so there should be these two requirements. However, Holy Prophet said, if the commodities differ, if the exchanging commodities are not homogeneous, they are different, they are heterogeneous. For example, I am giving you gold, you are giving me silver. So these are heterogeneous. I am giving you wheat, you are giving me barley. This is heterogeneous. I am giving you dates, you are giving me salt. Again, this is heterogeneous. So if the commodities are different, they are heterogeneous, then you may sell as you wish. Holy Prophet said, you can sell as you wish. जैसे चाहे आप उसको sell कर सकते हैं. Equality is not required anymore, provided the exchange is hand to hand. Exchange फिर भी hand to hand होना चाहिए. Holy Prophet said, फिर भी exchange hand to hand ही होना चाहिए. अगर commodities होमोजीनियस हैं तो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, इक्वालिटी भी होनी चाहिए, हैंड टू हैंड भी होना चाहिए. लेकिन अगर कमोडिटीज होमोजीनियस नहीं है बल्कि हेट्रोजीनियस हैं तो एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो क्या कि स्पॉट डिलीवरी होनी चाहिए. अगरचे इनइक्वालिटी हो सकती है, इनइक्वालिटी इज अलाउड बट डिलीवरी शुड बी ऑन द सेम टाइम. ऑल राइट. Let me summarize what we have discussed so far in a slide. For example, see, this slide summarizes what we have discussed so far. If the transacted commodities are of same nature, जिन commodities का exchange हो रहा है वो same है यानी homogeneous है, तो दो requirements हैं, spot delivery and same quantity. Quantity भी same होनी चाहिए in terms of weight और delivery भी same time पे होनी चाहिए. Like exchange of wheat with wheat. If the transacted commodities are of different nature, और अगर जिन कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा है वो डिफरेंट नेचर की हैं यानी हेट्रोजीनियस हैं, तो हॉली प्रॉफिट ने एक ही रिक्वायरमेंट बताई है विच इज स्पॉट डिलीवरी, दैट द डिलीवरी ऑफ बोथ द कमोडिटीज शुड बी ऑन द सेम टाइम. However, the commodities may differ. Commodities की क्वांटिटी डिफर हो सकती है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट अलाउड इन फैक्ट कि मैं आपको 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड दे रहा हूँ, आप मुझे बदले में 50 ग्राम्स ऑफ सिल्वर दे रहे हैं. मैं आपको 10 केजी ऑफ वीट दे रहा हूँ, आप मुझे बदले में 15 केजी ऑफ सॉल्ट दे रहे हैं. तो चूंकि कमोडिटीज हेट्रोजीनियस हैं तो इनइक्वालिटी भी की जा सकती है, इक्वल इक्वल होना जरूरी नहीं है. लाइक एक्सचेंज ऑफ व्हीट विद बार्ले. ऑलराइट. So I have summarized what we have discussed so far. The last thing left in riba al fazl is a question, a natural question can comes into your mind. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has listed 6 commodities.
Which 6 commodities? These 6 commodities: gold, silver, dates, salt, wheat, barley. These 6 commodities are listed by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his hadith, and he has given the rule of riba al-fazl regarding these 6 commodities. But what about rest of the commodities in our world? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन 6 चीजों के अलावा है, जैसे राइजेंस है, राइस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एल्यूमिनियम है। उनके अंदर अगर एल्यूमिनियम का एक्सचेंज एल्यूमिनियम से हो रहा हो, राइस का एक्सचेंज राइस से हो रहा हो, राइस का एक्सचेंज बार्ले से हो रहा हो, तो क्या होगा? तो उसके बारे में तो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस में नहीं बताया। तो उसमें उनके अंदर रिबाल फजल का रूल एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सी the viewpoint of Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa says कि Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने जो रिबा अल फजल का रूल बताया है उसके अंदर 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अगर आप उन Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has listed 6 commodities, अगर आप उन 6 commodities का एनालिसिस करें तो आपको 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आती हैं। नंबर 1, वेटेबल, ऑल द कमोडिटीज आर वेटेबल। गोल्ड वजन करके बिकता है, सॉल्ट वजन करके बिकता है, डेट्स वजन करके बिकती हैं, बार्ले, वीट, सिल्वर, ये सब की सब जो है वजन करके बिकती हैं। तो इन तमाम जो 6 कमोडिटीज हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई हैं, इन 6 की 6 कमोडिटीज के अंदर एक पहली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये 6 की 6 कमोडिटीज वेटेबल है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सचेंज बिटवीन सिमिलर कमोडिटीज, कि हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्वालिटी की जो शर्त लगाई है उस वक्त लगाई है जब सिमिलर कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा हो, यानी होमोजीनियस कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा हो। अगर हेट्रोजीनियस एक्सचेंज हो रहा हो तो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्वालिटी की कंडीशन नहीं लगाई है। लिहाजा ये 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं इन 6 कमोडिटीज के अंदर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का व्यू पॉइंट है कि ये 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जहां जहां पाई जाएंगी वहां रिबा अल फजल का यही रूल अप्लाई होगा। ऑल राइट, let me give you examples, couple of examples. Number 1, 8 kg of raisins with 10 kg of raisins, 8 kg of raisins with 10 kg of raisins। देखें, raisins के बारे में हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस हदीस में नहीं बताया, लेकिन इमाम अबू हनीफा का व्यू पॉइंट देखें तो raisins भी क्या है? वेटेबल है। जिस तरीके से वो 6 कमोडिटीज वेटेबल हैं, उसी तरीके से raisins भी क्या है? वेटेबल है। पहली कैरेक्टरिस्टिक पाई जा रही है। नंबर 2, raisins का एक्सचेंज हो रहा है raisins के साथ, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी पाई जा रही है कि होमोजीनियस एक्सचेंज हो रहा है। तो लिहाजा रिबा अल फजल का वही रूल अप्लाई होगा। और रिबा अल फजल का रूल क्या था कि अगर होमोजीनियस एक्सचेंज है तो इक्वालिटी भी करनी है, स्पॉट डिलीवरी भी करनी है। यहाँ देखें, इक्वालिटी नहीं है, 8 kg विद 10 kg, 2 kg एक्सेस है, तो ये क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, नाजायज होगा, रिबा अल फजल होगा। अनदर एग्जांपल, 50 kg ऑफ राइस विद 60 kg। तो देखें, राइस एंड राइस क्या है? होमोजीनियस भी हैं और वेटेबल भी हैं, दोनों करेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं। लेकिन तो रिबा अल फजल का वही रूल अप्लाई होगा कि जब होमोजीनियस है तो आपको इक्वालिटी करनी है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, 10 kg एक तरफ से ज्यादा आ रहा है, तो विच विल बी कंसिडर्ड एज रिबा अल फजल। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल फोन का एक्सचेंज हो रहा है दूसरे सेल फोन से, एक सेल फोन का एक्सचेंज हो रहा है दूसरे दो सेल फोन्स के साथ। मैं आपको एक फोन दे रहा हूं, बदले में आपसे 2 फोन्स ले रहा हूं, तो एक फोन ज्यादा ले रहा हूं मैं आपसे। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू दोनों की बराबर है, दोनों 30,000 के हैं, तो मैं आपको 30,000 रुपीज का एक फोन दे रहा हूं, आप मुझे 30,000 वाले 2 फोन दे रहे हैं, एक फोन ज्यादा दे रहे हैं, तो ये ज्यादा जो है ये रिबा अल फजल होगा या नहीं होगा? तो देखें, पहली वाली करेक्टरिस्टिक पाई जा रही है, वेटेबल होना नहीं पाई जा रही, बिकॉज सेल फोन्स आर सोल्ड countable, as countable, they are countable commodities, they are not वेटेबल commodities, उनको गिनकर बेचा जाता है। तो एक फोन को 2 फोन के बदले में बेचना जायज है, क्योंकि रिबा अल फजल का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रिबा अल फजल के लिए जो 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जानी चाहिए उनमें से एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वेटेबल होना मिसिंग है। इसी तरीके से 10 एग्स को अगर आप 12 एग्स के साथ जो है ना एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 2 एग्स ज्यादा हैं, जायज है, क्योंकि जिन कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा है वो वेटेबल नहीं है बल्कि काउंटेबल हैं, और तो लिहाजा वहां पे रिबा अल फजल की ये वाली इक्वालिटी की शर्त अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी। सो
we are done with the types of riba. We have discussed the riba al nasiya, we have discussed riba al fazl. Next we are going to discuss a few arguments which were given in favor of riba before Supreme Court of Pakistan couple of decades back. And we are discussing their rebuttals as well. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जब सूद का केस पेश हुआ था तो वहां पर स्कॉलर्स ने बाय स्कॉलर्स आई मीन PhDs, some PhDs and bankers. Okay, they gave a few arguments in favor of riba, and what answers, what rebuttals were given against those arguments. हम यहाँ से वो discuss करने जा रहे हैं. These are world famous arguments which are always given in favor of riba, and we will discuss these arguments as well as their rebuttals given by Supreme Court of Pakistan by Justice Mufti Taqi Usmani Saab. All right, the first argument: it was not in the prevalent modern shape in those days. It was not in the prevalent modern shape in those days. Do you know? All these arguments are written in a book. The name of the book is The Historical Judgment on Interest. तो वो जो बुक है 250 पेजेस की बुक है. उस बुक में से इन क्वेश्चंस को मैंने जो है वन लाइन के अंदर जो है ना एक्सट्रैक्ट किया है, समराइज किया है आप लोगों की आसानी के लिए. तो आर्ग्यूमेंट क्या था? इट वाज नॉट इन द प्रिवेलेंट मॉडर्न शेप इन दोज डेज, यानी कि रिबा आज जिस मॉडर्न शेप में पाया जाता है और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये मॉडर्न शेप नहीं थी. उस ज़माने में सिंपल शेप का रिबा पाया जाता था, सिंपल फॉर्म में रिबा पाया जाता था कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी से सूद लिया करता था. लेकिन आज रिबा तो बहुत ही मॉडर्न शेप में पाया जाता है. सूद सिर्फ गरीबों को नहीं देना पड़ता, अमीरों को भी देना पड़ता है अगर वो सूद पे कर्जा लेते हैं. तो सूद आज बहुत ही मॉडर्न शेप में पाया जाता है. ये उस ज़माने में हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था. लिहाजा हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूद से मना नहीं किया, बल्कि उस सूद से मना किया है, वो सिंपल वाला सूद जो उनके ज़माने में पाया जाता था. तो ये आर्ग्यूमेंट था कि आज के ज़माने का सूद प्रोहिबिटेड नहीं है. इसका आंसर दिया गया, देखें जब कोई चीज़ प्रोहिबिटेड होती है तो अपनी सिंपल फॉर्म में भी प्रोहिबिटेड होती है और मॉडर्न शेप में भी प्रोहिबिटेड होती है. Therefore, same rule applies on interest. When it is prohibited by Holy Quran and Hadith, so it is prohibited with all its shape. फॉर एग्जाम्पल अ lie, झूठ बोलना प्रोहिबिटेड है. अब आप सिंपल अंदाज में झूठ बोल लें मुझ जैसे सीधे साधे आदमी के साथ, या आप एक मॉडर्न अंदाज में जो ना झूठ बोलें कि पकड़ना ही मुश्किल हो जाए, दोनों ही सूरतों में झूठ जो है ना नाजायज ही है. सिमिलरली रिबा मॉडर्न शेप जो आज पाई जाती है उसकी भी वो भी मना है. जो सिंपल शेप में पहले पाया जाता था वो भी मना है कि क्योंकि जब कोई चीज प्रोहिबिटेड होती है तो अपनी तमाम फॉर्म्स के साथ प्रोहिबिटेड होती है. Number two, doctrine of necessity. Doctrine of necessity. Riba should be allowed because of doctrine of necessity. The argument was interest has become our need of life. हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिंदगी इसके बगैर गुजर नहीं सकती है, क्योंकि जिंदगी बैंक्स के बगैर नहीं गुजर सकती. बैंक्स इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो बैंक्स बंद हो जाएंगे और तो दुनिया का कारोबार रुक जाएगा और हमारी जिंदगी रुक जाएगी. तो लिहाजा जरूरत की वजह से इंटरेस्ट को अलाउ करना चाहिए, जिस तरीके से पोर्क भी जो है ना जरूरत के वक्त जो है ना खाना की इजाजत दी गई है. तो देखें इसका आंसर ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता. डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ये होता है कि ऐसी ज़रूरत कि उसके बगैर आप मर जाएंगे. तो इंटरेस्ट कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है हमारी ज़िंदगी की कि अगर वो नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं लिया हमने या इंटरेस्ट नहीं दिया तो हम मर जाएंगे. ऐसी कोई चीज़ बात नहीं है. नंबर वन. नंबर टू, नेसेसिटी उसे कहते हैं जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ना हो. इंटरेस्ट का ऑल्टरनेटिव मौजूद है. इस्लामिक बैंकिंग प्रॉफिट जो है ना इंटरेस्ट का ऑल्टरनेटिव है. तो बैंकिंग के बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती, ट्रू. लेकिन बैंकिंग कन्वेंशनल करना तो जरूरी नहीं है ना. इस्लामिक भी तो की जा सकती है, इस्लामिक स्टाइल में भी तो बैंकिंग की जा सकती है. जरूरी तो नहीं है कि इंटरेस्ट बेस्ड ही बैंकिंग ही की जाए. लिहाजा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का रूल इंटरेस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता. The third arguments, both parties agree. दोनों पार्टीज राजी हैं. आपको क्या एतराज है? दोनों पार्टीज राजी है. सूद लेने वाला भी बैंक में राजी होता है, बैंक सूद लेने वाला है वो भी राजी होता है. देने वाला लेने वाला दोनों राजी हैं, तो आपको भी इसको अलाउ कर देना चाहिए. द आंसर इज पार्टीज के एग्री होने से कुछ नहीं होता. अगर कोई चीज नाजायज है तो वो नाजायज ही रहती है. एडल्ट्री इज इम्परमिसिबल no matter both the parties agree upon.
अगर दोनों पार्टीज राजी हो रिश्वत लेने और देने के ऊपर, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि रिश्वत को अलाउ कर दें, रिश्वत तो फिर भी हराम रहेगी. सेम गोज विद इंटरेस्ट. The fourth and the last argument is prohibited thing is interest, and what commercial banks charge is markup. कि आप बहुत ही सिंपल है, आप कह रहे हैं इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, एग्रीड, लेकिन बैंक्स जो चार्ज करते हैं वो मार्कअप है, वो इंटरेस्ट नहीं है. आप बैंक के डॉक्यूमेंट्स को उठाकर देखें, उसके उसमें मार्कअप लिखा हुआ है, तो मार्कअप है तो वो इंटरेस्ट कहाँ है? तो भाई बात यह है, नाम चेंज कर देने से वो चीज नहीं बदल जाएगी. अगर इंटरेस्ट की डेफिनेशन पाई जा रही है तो वो इंटरेस्ट ही है, चाहे आप उसका नाम इंटरेस्ट रखें, उसका नाम प्रॉफिट रखें, उसका नाम रिटर्न रखें, उसका नाम सरप्लस रखें, उसका नाम मार्कअप रख दें, या उसका नाम राधा रख दें. कुछ भी आप उसका नाम रख दें, अगर वहां पे इंटरेस्ट की डेफिनेशन पाई जा रही है तो वो इंटरेस्ट ही होगा. और कन्वेंशनल बैंक का जब एनालिसिस किया जाए तो वहां पे रिबा अल नसिया की डेफिनेशन पाई जा रही होती है, लिहाजा वो इंटरेस्ट ही है, चाहे उसको मार्कअप कहा जा रहा हो. ऑल राइट, यहाँ पे रिबा का चैप्टर मुकम्मल हो गया है स्टूडेंट्स, और वी हैव डिस्कस व्हाट रिबा इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिबा, व्हाट कुरान करीम सेज अबाउट रिबा, एंड व्हाट हदीस सेज अबाउट रिबा. तो यहाँ पर इंटरेस्ट का चैप्टर जो है मुकम्मल हो गया है. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज ऑन गरर, अनसर्टेनिटी. Gharar. Gharar is an Arabic word. In English, it is known as excessive uncertainty. Excessive uncertainty. Uncertainty कहते हैं ना, uncertainty means गैर यकीनी कैफियत. Uncertainty means गैर यकीनी कैफियत. तो excessive uncertainty means बहुत ज़्यादा गैर यकीनी कैफियत. गैर यकीनी कैफियत मतलब फॉर एग्जांपल, ये लेक्चर हम मुकम्मल कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, क्या पता मैं मर जाऊं. इस लेक्चर के सुनने के बाद क्या पता आप पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप ही ना मर जाए. तो दिस इज अनसर्टेनिटी. यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू डोंट नो कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो दिस इज अनसर्टेनिटी. So let me share my screen with you first. All right, we were talking about gharar. So gharar is an excessive uncertainty. I was giving you an example. For example, you are starting a business, so you are not sure whether you are going to make a profit or loss. So this is known as uncertainty. There could be a profit, there could be a loss. All right, so this is known as gharar in an Islamic finance, and Islam prohibits all those transactions which carry excessive uncertainty. We will discuss what uncertainty is. In literal meaning, gharar is an uncertainty, hazard, chance and or risk. गदर किसे कहते हैं? Uncertainty को, chance को, risk को. आप कोई गेम खेल रहे हैं, there is a chance you win and or you lose. So gharar is one of those impediments. गharar उन खराबियों में से है which make the contract illegitimate. जिस तरीके से कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट की वजह से इलेजिटिमेट हो जाता है, सेम गोज विद गरर, कि गरर की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट इलेजिटिमेट हो जाता है. All right, let's discuss the concept of gharar. The uncertainty that is present in the basic elements of an agreement. The uncertainty that is present in the basic elements of the in the basic elements of an agreement. What are the elements of an agreement? There are three elements in every contract: wordings, subject matter and consideration. Uncertainty किसे कहते हैं? कि वो uncertainty जो के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स में पाई जा रही हो. कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स तीन होते हैं. नंबर वन वर्डिंग्स, नंबर टू सब्जेक्ट मैटर एंड नंबर थ्री कंसिडरेशन. ऑल राइट,
So first we have to understand what is wording, what is subject matter, what is consideration. For example, I am selling you my cell phone and I am saying, I want to sell you my cell phone. Do you want to buy? You are saying, yes, I want to buy your phone. So see, I offered you to sell, I offered you to sell my phone, and you accepted my offer. This is wordings. This is the exchange of wordings. मैंने आपसे कहा मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं, तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं, दिस इज एन ऑफर. आप बदले में कहते हैं कि जी मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूं, तो दिस इज एन एक्सेप्टेंस. तो दिस इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज वर्डिंग्स. नंबर टू, सब्जेक्ट मैटर. ये जो मैं आपको गाड़ी सेल कर रहा हूं या मैं आपको सेल फोन सेल कर रहा हूं, दिस इज सब्जेक्ट मैटर. जिस चीज के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो टीचिंग है, दिस इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट मैटर. मैं आपको अपना लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, तो लैपटॉप इज अ सब्जेक्ट मैटर. मैं आपको जो है कपड़े सेल कर रहा हूँ, कपड़ा इज अ सब्जेक्ट मैटर. ऑलराइट. नंबर थ्री, कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स बदला. सब्जेक्ट मैटर के बदले में आप क्या देंगे. मैं आपको सेल फोन दे रहा हूँ, बदले में आप पैसे दे रहे हैं, तो पैसे कंसिडरेशन है. मैं आपको सेल फोन दे रहा हूँ, बदले में आप अपना लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप कंसिडरेशन बन जाएगा. मैं आपको सेल फोन दे रहा हूँ, बदले में आप अपना सेल फोन दे रहे हैं, तो आपका जो सेल फोन जो आप मुझे दे रहे हैं बदले में, वो कंसिडरेशन बन जाएगा. तो वट एवर यू आर गिविंग अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर इज नोन एज कंसिडरेशन. ऑलराइट. तो मैंने कहा कि किसी हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तीन बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो गरर किसे कहते हैं, वो अनसर्टिनिटी जो इन तीन एलिमेंट्स में से किसी न किसी के अंदर पाई जा रही हो, तो उसे कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट गरर वाला कॉन्ट्रैक्ट है. ऑल राइट. अब इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर अनसर्टिनिटी कैसे पाई जाएगी, मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल दे देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, वर्डिंग्स के अंदर अनसर्टिनिटी कैसे पाई जाएगी. आई सॉ योर फोन. मैंने आपका फोन देखा, आपका फोन टेबल के ऊपर रखा हुआ था. मैंने आपका फोन देखा, मैंने क्या किया, अपनी जेब से पैसे निकाले, 20,000 पे वहां पे रखे, फोन उठाया और चला गया. आपसे मैंने ऑफर एक्सेप्टेंस किया ही नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, लेकिन मैंने बगैर ऑफर एक्सेप्टेंस के आपका फोन खरीद लिया, अपनी अपनी मर्जी से खरीद लिया. फोन उठा लिया, पैसे दे दिए, ना आपसे पूछा ना आपको कुछ कहा, ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, फोन लेकर चला गया. तो देखें, जब आपको पता चलेगा कि आपका फोन मैं लेकर चला गया हूं और आपको पैसे मैं रखकर चला गया हूं, तो देयर आर चांसेस, देयर इज एन अनसर्टेनिटी, ईदर यू विल accept it or and keep the money with you, or you will give me a call, या आप मुझे बुलाएंगे और बोलेंगे, ओ भाई मेरा फोन मुझे वापस करें, आई डोंट वांट योर मनी, मुझे मेरा फोन जो है ना वापस करें, मेरी दोस्त ने दिया था, उसकी प्यार की निशानी है, मैं वापस नहीं कर सकता, अब बेच नहीं सकता. तो लिहाजा जो है ये क्या है, अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. आप पैसे रख लेंगे और मुझे फोन लेने देंगे, या फोन वापस मांगेंगे और पैसे वापस करेंगे. तो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वर्डिंग्स. ठीक है. इसी तरीके से सब्जेक्ट मैटर के अंदर भी अनसर्टेनिटी होती है. कैसे, मैंने आपको कोई चीज सेल कर रहा हूं, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट्स डिस्क्रिप्शन. मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी जेब में जो भी चीज है ना, वो मैं आपको सेल कर रहा हूं. या मैं आपसे कह रहा हूं मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, जो भी मेरी मुट्ठी में है ना, वो मैं आपको जो है ना सेल कर रहा हूँ, लेकिन बता नहीं रहा कि मेरी मुट्ठी में क्या है. या चले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको कपड़ा सेल कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये कपड़ा लॉन है या कॉटन है या जॉर्जेट है या वॉशिंग वेयर है या शेफॉन है, क्या है, कुछ भी नहीं बता रहा. कलर कौन सा है ये भी नहीं बता रहा. अगर लॉन है तो कौन सी लॉन है, जुनैद जमशेद की है, आसिम जोफा की है, खाड़ी की है, बोनेंजा की है, किसकी है, ओरिएंट की है, किसकी है, कुछ भी नहीं बता रहा. तो डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा. तो जब आपको मैं चीज बेच दूंगा, बाद में आपको पता चला ये रेड कलर की है, आपने कहा सर मुझे रेड कलर का नहीं चाहिए, मुझे तो मैं पिंक कलर का चाहिए, या मुझे तो व्हाइट कलर का चाहिए, वापस ले. तो मैंने आपको चूंकि पहले बताया नहीं था, अब चांसेस है या तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, हो सकता है कि आप वापस कर दें, या मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, मैंने कहा मेरी जेब में जो भी चीज है मैं आपको बेचता हूँ 500 रुपए की, आपने कहा चले ठीक है मुझे दे दें. जब देखिए ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने क्या बेचा. अब मैंने जब जेब से निकाला, तो मेरी जेब में से फॉर एग्जाम्पल क्या निकला, फॉर एग्जाम्पल मेरी जेब से जर्मन चॉकलेट निकली. जर्मन चॉकलेट निकली, मैंने कहा ये लो 500 रुपए की चॉकलेट. तो आपने कहा सर मैं तो चॉकलेट खाती ही नहीं.
आई डोंट वांट चॉकलेट, टेक योर चॉकलेट बैक एंड गिव मी माय मनी बैक। तो देखें तो यहाँ पर भी क्या है, अनसर्टिनिटी है, ईदर यू विल एक्सेप्ट द चॉकलेट एंड लेट मी गो, या और यू विल आस्क योर मनी बैक, और आप मुझे अपनी चॉकलेट वापस करेंगी। तो अनसर्टिनिटी पाई जा रही है कि ये ट्रांजेक्शन होगी या नहीं होगी। ये क्यों पाई जा रही है? रीजन बीइंग आई हैव नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सिमिलरली कंसिडरेशन के अंदर अनसर्टेनिटी है। मैंने आपसे कहा ये बिस्किट ले रहा हूं मैं आपकी दुकान से, कितने पैसे? आपने कहा ले जाओ, बाद में कर लेंगे। क्या आप कब कर लेंगे भाई? कितने कर लेंगे बताएं ना, आपने बताया ही नहीं कितने पैसे। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, आपने कुछ नहीं बताया। बाद में कर लेंगे, कब कर लेंगे? 1 घंटे के बाद, 1 महीने के बाद, 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, कब कर लेंगे? अब आप 1 हफ्ते के बाद मुझे कहते हैं पैसे तो दे दो, मैंने आपसे कहा, आपने कहा था ना बाद में कर लेंगे, जब बाद आएगी तब कर लेंगे। मेरी बात अभी तक नहीं आई है, तो देखें डिस्प्यूट खड़ा होगा मेरे और आपके बीच में। तो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन, कि हमने उसको जो है ना एक्सप्लेन नहीं किया कि कितने में बेच रहे हैं, कब पैसे देंगे, कितनी पेमेंट होगी, कब होगी, इंस्टॉलमेंट्स में होगी, लमसम में होगी, तमाम डिटेल्स हमने एक्सप्लेन नहीं की। सो आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल फॉर ईच कि किस तरीके से वर्डिंग्स के ना पाए जाने की वजह से अनसर्टेनिटी पाई जाती है, सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन ना करने की वजह से अनसर्टेनिटी पाई जाती है, और कंसिडरेशन को एक्सप्लेन ना करने की वजह से अनसर्टेनिटी पाई जाती है। So the explanation of gharar is the uncertainty that is present in the basic elements of a contract. अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के इन तीन में से किसी भी एलिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जा रही होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना जायज नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट गरर वाला कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ऑल राइट, there are a few examples which Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated in his ahadith to explain gharar. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने gharar को explain करने के लिए अपनी ahadith में ये कुछ examples दी थी। Let me share a few examples with you. Number one, sale of unborn camel's baby still in mother's abdomen. ठीक है, एक कैमल है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो जो उसके उसके एब्डोमेन में जो बेबी है आप उसको सेल कर रहे हैं। आप किस चीज को सेल कर रहे हैं? कैमल की एब्डोमेन में जो बेबी है उसको सेल कर रहे हैं। तो जायज नहीं है, क्योंकि ये गलर पाया जाता है कि पता नहीं बेबी है भी या नहीं है, कुछ और तो नहीं है कि यहाँ पे बेबी जब पैदा होगा तो जिंदा होगा या नहीं होगा, और अब बेबी कब पैदा होगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। तो इस वजह से इस तरीके से बेचना जायज नहीं है। लेट इट गिव बर्थ फर्स्ट, पहले वो बर्थ हो जाए उसके बाद जो है ना आप उसकी बेबी को सेल कर सकते हैं। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, सेल ऑफ सेल ऑफ फिश दैट कम्स इन वन थ्रो ऑफ नेट। आप जंगल में जो सॉरी दरिया में जो है ना जाल डाल रहे हैं, नेट डाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं जाल डाल रहा हूँ, जितनी भी मछली आई ना मैंने आपको सेल कर दी 500 रुपए की, जितनी भी आई। तो इस तरीके से सेल करना जायज नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। हो सकता है एक ही मछली आए, हो सकता है बहुत सारी मछलियां आए, और हो सकता है एक भी मछली ना आए, फिर क्या होगा? तो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। तो इस तरीके से अनसर्टेनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट करना शरीयत में जायज नहीं है। Here comes a question, a natural question may arise in your mind कि आप ये कह रहे हैं कि अनसर्टिनिटी वाले काम करना जायज नहीं है, तो भाई दुनिया के हर काम के अंदर ही अनसर्टिनिटी है, तो क्या दुनिया के सारे काम छोड़ दें? क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर ही अनसर्टिनिटी है, पता नहीं हम कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। यू हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द यूनिवर्सिटी फॉर अ सेमेस्टर। आपने यूनिवर्सिटी को एक सेमेस्टर की फीस पे की है, और यूनिवर्सिटी ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको एक सेमेस्टर तक पढ़ाएंगे। अब पता नहीं आप 1 महीने सेमेस्टर तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो आप यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाएगा, और अगर जिंदा नहीं रहे तो कॉन्ट्रैक्ट वही इनकम्प्लीट रह जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो देयर इज एन अनसर्टिनिटी। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करना जायज नहीं है? इसी तरीके से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस हो, दोनों चांसेस हैं, अनसर्टिनिटी है, तो क्या बिजनेस करना जायज नहीं है? क्योंकि अनसर्टिनिटी वाले काम करने से तो इस्लाम ने मना किया है। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, शादी कर रहे हैं, पता नहीं है कि शादी जो है ना कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, अनसर्टिनिटी है, तो क्या मैं शादी करना जायज नहीं होगा? या शादी कर रहे हैं, पता नहीं कि शादी करने के बाद वो जिंदा रहेगी, वो तो हमेशा ही जिंदा रहती है, मर्द पता नहीं जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए अनसर्टिनिटी है, तो क्या शादी करना जायज नहीं है? तो अनसर्टिनिटी वाले कामों से शरीयत ने मना किया है, तो इसका हल क्या है? तो देखें अनसर्टिनिटी दो तरह की होती है, माइनर गरर एंड एक्सेसिव गरर। माइनर गरर एंड एक्सेसिव गरर। तो शरीयत ने
जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर माइनर गरर पाया जा रहा हो, वो वाला गरर इन इग्नोरेंट है, वो वाला काम कर सकते हैं। आई रिपीट, जिन कामों के अंदर, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर माइनर अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, वो अनसर्टेनिटी इग्नोरेंट है, वो वाले काम करना जायज़ है अगरचे अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। लेकिन जिन कामों के अंदर एक्सेसिव अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, उन कामों से शरीयत ने मना किया है। जितनी भी मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दी, वो सारी की सारी वो है जहाँ पे एक्सेसिव अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। पता कैसे चलेगा वेदर द अनसर्टेनिटी इज माइनर और एक्सेसिव? तो सी, उसका रूल ये है, इफ अनसर्टेनिटी इज अनकंट्रोलेबल, अगर आप अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो वो अनसर्टेनिटी क्या है? माइनर अनसर्टेनिटी है, वो इग्नोरेंट है, वो वाले काम करना शरीयत में जायज है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बिजनेस शुरू करते वक्त नहीं पता, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं प्रॉफिट होगा, पता नहीं लॉस होगा, ये अनसर्टेनिटी अनकंट्रोलेबल है। You cannot eliminate this, so there's that is why this uncertainty is ignorant in sharia and और business करना जायज है। Similarly contract of marriage, शादी कॉन्ट्रैक्ट की, शादी की, अब पता नहीं कि ये कायम रहेगी या नहीं रहेगी, तो लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है अनकंट्रोलेबल है, लिहाजा दिस इज इग्नोरेंट और दिस इज इग्नोर्ड बाय शरिया, और शादी करना जायज है। ठीक है, इसी, लेकिन एक्सेसिव अनसर्टेनिटी वो होती है जो कि कंट्रोलेबल है, यानी उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इस अनसर्टेनिटी से शरीयत ने मना किया है, लिहाजा जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक्सेसिव अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट शरीयत की नज़र में नाजायज है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि वर्डिंग्स के अंदर अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। कैसे? मैंने आपका सेल फोन लिया और ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं किया, अब पता नहीं आप जो है ना मेरी सेल फोन लेने देंगे या आप मेरे से अपना सेल फोन वापस मांगेंगे, तो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। तो लेकिन ये अनसर्टेनिटी देखिए कंट्रोल हो सकती है, यानी एलिमिनेट हो सकती है, कि पहले आप ऑफर एक्सेप्टेंस करें, उसके बाद किसी की कोई चीज़ लें, ऑफर एक्सेप्टेंस के बगैर किसी की चीज़ ना लें, तो ये अनसर्टेनिटी क्या है? एलिमिनेट हो सकती है। इसी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बता रहा, मैं आपको कपड़ा बेच रहा हूँ लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा। अब जब आपको वो कपड़ा मिलेगा तो अनसर्टेनिटी है कि वेदर यू विल एक्सेप्ट इट और यू विल रिजेक्ट इट। तो ये अनसर्टेनिटी क्या है? खत्म की जा सकती है। वो कैसे? कि जब आप कोई चीज बेच रहे हो तो उसकी कंप्लीट बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन बायर को प्रोवाइड करें, ताकि बाद में बायर के पास जो है रिजेक्शन का चांस ही ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक्सेसिव गरर है। नेक्स्ट स्लाइड इज द लास्ट स्लाइड, जिसके अंदर एक्सेसिव गरर की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, या आप खुद से देख लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी हैं। यहाँ पे गरर का चैप्टर एंड हो गया। See you in the next chapter. Stay home, stay safe. All the best. Allah Hafiz.